Very good morning to everyone. Following is the sum we will do today. Raja Ram keeps his books on single entry system. So Raja Ram is the owner, sole owner of the business who keeps his books under single entry. From the following information provided by him, prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as on the same date. So here we have to prepare the final accounts of Mr. Rajaram. What is given? Balance sheet of two dates are given, 31st March 2017 and 31st March 2018. So two dates are there, 31st March 2017 and 31st March 2018. Opening balance sheet information and closing balance sheet information is given. So here furniture is 10,000. In the closing date, nothing is given. We have to assume same thing. If there is no additions in the question, we have to see अगर और फर्नीचर परचेज हुआ है कि नहीं. पर ओपनिंग डेट जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिकॉज 31 मार्च 2017 का अगला दिन है 1 अप्रैल व्हेन द बिजनेस स्टार्टेड. तो 31 मार्च 2017 के दिन जो असेट होगा अगले दिन 1 अप्रैल को वही सेम रहेगा. एंड 31 मार्च को अगर पूरे साल में कुछ एडिशन हुआ है फर्नीचर का तो इट विल चेंज. देन स्टॉक इन ट्रेड ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है. डेटर ओपनिंग बैलेंस इज देयर, क्लोजिंग बैलेंस इज देयर. क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस इज देयर बट क्लोजिंग बैलेंस वी हैव टू फाइंड आउट. क्लोजिंग क्रेडिटर हमें फाइंड करना पड़ेगा. सेम वे कैश का ओपनिंग बैलेंस है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, दोनों दिया है. इसके बाद नाउ रिसीट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज. Receipt and payment was as follows. Received from debtors 42,000, paid to creditors 20,000, carriage outward paid 4,000. ये रिसीव फ्रॉम डेटर, इससे डेटर कम होगा. पेड टू क्रेडिटर, इससे क्रेडिटर कम होगा. कैरेज आउटवर्ड पेड, कैरेज आउटवर्ड कम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ड्रॉइंग्स कैपिटल में से लेस होता है. सन्ड्री एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, पेड है. फर्नीचर परचेज असेट में फर्नीचर में ऐड करना पड़ेगा. देखो इन ईयर 2000 का फर्नीचर परचेज भी हुआ है. अदर इंफॉर्मेशन, there were considerable amount of cash sales. और वो कैश सेल कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है. देखो receive from debtor, paid to creditor, carriage outward, drawing, sundry expense, furniture. नथिंग इज टोल्ड अबाउट कैश सेल्स. मतलब कैश बुक प्रिपेयर करेंगे, हमें ओपनिंग बैलेंस पता है, क्लोजिंग बैलेंस पता है, बट कैश बुक को बंद करेंगे तो हमें कैश सेल्स मिल जाएगा. बिकॉज कैश सेल्स है बोलते, it is given in the question that there are cash sales. Cash sales means what? Means selling goods to our customers on cash basis. Means you will sell the goods, you will get the cash on the spot. जब आप on the spot sell करते हो आपको तुरंत पैसा मिलता है, is known as cash sales. The cash sales should be there in the receipt side of the cash book. So when we will prepare the cash book, we will get this amount. Credit purchase during the year amounted to 23,000. तो creditors कितना, credit में हमने कितना purchase किया 23,000, तो creditor उतना increase होगा. See the amount how much you take a credit and purchase from the creditors will increase. Creditors कैसे increase होता है? When you purchase on credit,
provide a provision for doubtful debts to the extent of 10% on debtors. Okay, bad debts provision करना है, debtor जो भी होगा closing debtors उसका 10%. So now let us start this sum. So सबसे पहले let us prepare the opening balance sheet. लेकिन वो सब करने से पहले what I will do in the books of Raja Ram, what all we have to prepare in the books of Raja Ram. What we have to do in the books of Raja Ram, we have to prepare trading and profit and loss account as asked in the question. Trading and profit and loss account for year ended. Question में it is given for year ended 31st March 2018. For year ended 31st March 2018. So prepare the table, particulars, 2 column for amount, particular, 2 column for credit side amount. So done. Particulars, rupees, particulars. Okay. So now copying this, actually I had to copy this earlier, but it's okay. Balance sheet on the same date. So balance sheet as on 31st March 2018. I have copied, लेकिन मुझे बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स नहीं चाहिए. I have to change it liabilities and asset. So these are done. Now क्या करना है हमें, क्या इतना तो प्रिपेयर करने क्वेश्चन में बोला गया है that you have to prepare trading P&L account and balance sheet. So now what more? I don't know the opening capital. मुझे कैपिटल तो किधर पता ही नहीं है. तो बैलेंस शीट में सारे एसेट्स दिए बट नथिंग इज टोल्ड अबाउट द कैपिटल. सो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई विल हैव टू प्रिपेयर, these are all working notes and working notes form the part of your answer. You know that. Balance sheet as on 31st March 2017, बिकॉज यहाँ पे हमें 2017 का बैलेंस शीट भी दिया है. बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन दिया है. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल अगेन हैव टू चेंज बिकॉज दिस इज लाइबिलिटीज, दिस इज असेट्स. एंड उसके अलावा आई विल हैव टू प्रिपेयर, देखो मुझे डेटर्स का क्या नहीं दिया है. डेटर्स का कौन सा इंफॉर्मेशन नहीं है? डेटर का दोनों दिया है, लेकिन क्रेडिट सेल है क्या? एनीवेयर क्रेडिट सेल नहीं है. क्रेडिट सेल के बारे में कुछ भी नहीं दिया है. क्रेडिट परचेज इज गिवन बट क्रेडिट सेल इज नॉट गिवन. सो व्हाट आई विल हैव टू डू, I will have to prepare debtors account to get the information of credit sale. To get the information of credit sale. Now again go to the question. See here, creditor. Here creditor, opening creditor is given. Closing creditor is not given. Debtor both opening and closing is there but credit sales is not there. तो debtor account prepare करना पड़ेगा because credit sale debtor से ही पता चलता है.
दूसरा ओपनिंग क्रेडिटर है पर क्लोजिंग क्रेडिटर के बारे में ब्लैंक है, नथिंग गिवन। एंड तो हमें क्लोजिंग क्रेडिटर के लिए क्रेडिटर अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो व्हाट आई विल डू, आई विल प्रिपेयर द क्रेडिटर्स अकाउंट. एंड व्हाट एल्स, और कोई अकाउंट. देखो यहाँ पे बोलते हैं देयर वाज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज देयर, ओपनिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस इज देयर, बट cash sales in the paragraph they say there was considerable amount of cash sales, means there was a cash sales but nothing given about cash sales. So for the cash sales, for the cash sales we will have to prepare cash book also, cash book भी prepare करना पड़ेगा. So I will prepare cash book. So cash book prepare करेंगे, या कैश अकाउंट बोलोगे तो भी चलेगा, बट व्हेन यू राइट कैश बुक यू हैव टू राइट रिसीट पेमेंट. अगर आप कैश अकाउंट लिखोगे तो ऐसे रिसीट पेमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट व्हेन यू राइट कैश बुक यू शुड राइट अबाउट दैट. सो नाउ not compulsory but it looks nice. So we have come to the question. Chalo, now let us start. We have discussed the question. Now let us start with the solution. In the beginning, what is given? Furniture 10,000. So सबसे पहले let us find out the capital. Opening balance का सब amount लिख लेते हैं. So we have वर्किंग नोट में ओपनिंग कैपिटल, उस आई मीन ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर इज 10,000. ओपनिंग बैलेंस शीट का कर लेते हैं पहले. ओपनिंग बैलेंस शीट का सारा इंफॉर्मेशन है एक के नीचे. स्टॉक डेटर, how much? 6,000, 12,000. So I will write 6,000, 12,000. 6,000, 12,000. And what is there? Creditor 4,000, cash 2,200. So creditor I will write here. Creditor, how much was creditor? Creditor was 4,000. Na? Creditor was 4,000 and cash was 2,200. So cash is 2,200. So now when I will close this balance sheet, it will not tally because what is missing? Capital is missing, and capital will be the balancing figure. Balancing figure. So what I will do, I will close this balance sheet. I will close this balance sheet. 10,000 plus 6 is 16. 16 plus 12 is 28. 28, 3,200. This is how much? 3,200. So here also I will write the same amount, 3,200, and minus 4,000 from 3,200. How much you get? 26,200. So this is the balancing figure. What I got, this is the capital. So ये capital मैं कहाँ लिखूंगी? ये मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा इधर. कैपिटल ओपनिंग बैलेंस 26,200. 26,200. So after preparing the balance sheet, opening balance sheet, that is a first day balance sheet, I got the capital amount. So now after this, see what information we have. Furniture ओपनिंग तो सेम रहेगा, उसमें कुछ परचेसेस कुछ हुआ रहेगा तो वो बाद में देखेंगे.
सो यहाँ पे सेल्स रहेगा, परचेस रहेगा, वो बाद में देखेंगे. फर्नीचर इनसाइड कॉलम में आई विल राइट 10,000 बिकॉज फर्नीचर परचेस आगे है. Stock in trade 6,000, 2,000. So what I will do, I will go to the trading account. 6,000 last year का stock is opening stock. Agreed. Last year का stock, first day का stock is opening stock, last day का stock is closing stock. Closing stock is 2,000. So I will write here also by closing stock. Closing stock is how much? Closing stock is 2,000. So one more place closing stock will come. Closing stock will also come here. You may write only stock or you write closing stock. No problem. Now debtors amount is there 12,000 and 14,000. So 14,000 is current year debtor because 12,000 तो ओपनिंग में हमने ओपनिंग क्या बैलेंस शीट में ऑलरेडी लिख लिया. तो हाउ मच इज द डेटर्स इज 14,000 बट उसमें RDD है. सो मैं इनर कॉलम में लिखूंगी and debtor is how much 12,000 14,000. We are also preparing debtor account. So debtor मतलब asset मतलब क्या टू बैलेंस बॉट डाउन रहेगा. डेबिट बैलेंस टू बैलेंस बॉट डाउन. हाउ मच इज द बैलेंस 12,000. एंड जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो ओपनिंग बैलेंस के ऑपोजिट साइड में होता है. तो इधर टू बैलेंस है तो क्लोजिंग विल कम इन द क्रेडिट साइड. बाई बैलेंस कैरीड डाउन एंड द क्लोजिंग अमाउंट इज 14,000. नव इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस है. तो क्रेडिटर्स जो है लाइबिलिटी है, इन लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है. तो बाई बैलेंस बॉट डाउन 4,000 विल कम इन द क्रेडिट साइड. फिर इसके बाद क्रेडिटर्स के बाद हमारे पास कैश बैलेंस है. तो करंट ईयर कैश कितना है, करंट ईयर का हमारा बैलेंस शीट में कैश विल कम 600. सो आई विल राइट डाउन कैश का बैलेंस. आई विल राइट डाउन कैश 600 दिया है ना. 600 2,200 एंड 600. तो मैं कैश बुक भी बना रही हूँ, करेक्ट. तो यहाँ पे आई विल राइट टू बैलेंस बिकॉज कैश इज असेट. असेट को डेबिट बैलेंस होता है. तो 2,200 और क्लोजिंग बैलेंस इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट साइड. So buy balance carried down, I'm sorry, buy balance carried down, it will be 600 given here. Opening balance, closing balance. So opening asset को हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. तो हमने डेबिट साइड में लिखा टू बैलेंस बॉट डाउन और क्रेडिट साइड में लिखा बाई बैलेंस कैरीड डाउन. Because closing balance is always in the opposite side of the opening balance. Majority time it is like that. फिर इसके बाद receive from debtors. डेटर्स से पैसा मिला, रिसीव हुआ तो वो कैश बुक में भी आएगा. रिसीव हुआ तो कैश बुक में आएगा. रिसीव फ्रॉम डेटर्स टू डेटर्स. कितना पैसा रिसीव हुआ डेटर से 42,000. तो कैश बुक में मैंने लिखा 42,000. नाउ टेल मी, जब डेटर से पैसा रिसीव हुआ मीन्स डेटर कम होगा. मीन हुआ द डेटर, दीज आर दोस customers who have purchased goods on credit from us.
मतलब वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू डेटर्स, डेटर्स को उधार में गुड्स सेल किया है, तो डेटर जब पैसा देंगे तो उनका उधार कम होगा, तो डेटर 42,000 मिला पैसा, तो डेटर कम होगा। डेटर जब इस असेट, असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट कम होता है तो क्रेडिट। तो हमें यहाँ लिखना है बाई में होगा, बिकॉज डेटर कम होगा जब वो लोग पैसा चुकाएंगे, तो टू डेटर्स ऑपोजिट साइड में आएगा बाई कैश। बाई कैश अकाउंट कितना अमाउंट मिला डेटर से 42,000। इसके बाद अगेन गो टू द क्वेश्चन, पेड टू क्रेडिटर्स 20,000, तो ये क्या है, रिसीट है या पेमेंट है? पेड टू क्रेडिटर इज व्हाट, रिसीट और पेमेंट। पैसा आ रहा है, क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो, या पैसा जाएगा व्हेन क्रेडिटर्स को पे करेंगे? यस, इट इज अ पेमेंट। सो आई विल राइट हियर बाय क्रेडिटर्स 20,000। I will write here 20,000. So क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो क्रेडिटर्स भी कम होगा, तो क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिट बैलेंस, लेकिन पे करेंगे तो कम होगा, तो लाइबिलिटी कम होता है, तो डेबिट में लिखते बाई क्रेडिटर, क्रेडिटर के में टू हो जाएगा, इधर बाई, कैश बुक में बाई, तो हमेशा जो बुक में डेबिट में होता है तो ऑपोजिट इफेक्ट विल बी क्रेडिट, सो बाई क्रेडिटर, तो ऑपोजिट साइड में आएगा टू, क्या नाम है बुक का, कैश अकाउंट। हाउ मच अमाउंट, 20,000। इसके बाद अगेन गो टू द क्वेश्चन, कैरेज आउटवर्ड पेड, पेड मतलब पेमेंट, पेड मतलब इट इज अ पेमेंट, तो लिखेंगे बाय कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। हाउ मच हमने पे किया, यस 4,000। नेक्स्ट वन, कैरेज आउटवर्ड एक और जगह आएगा, कैरेज आउटवर्ड और किधर आएगा, कैरेज आउटवर्ड विल कम वेयर एल्स, इट विल कम इन द P&L अकाउंट, P&L अकाउंट बना देते, टू कैरेज आउटवर्ड 4,000। P&L अकाउंट में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में कैरेज इनवर्ड आता है, फिर ड्रॉइंग 12,000, ड्रॉइंग मतलब पैसा बाहर गया, तो हम कैश बुक में जाएंगे और लिखेंगे बाय ड्रॉइंग 12,000, बाय ड्रॉइंग्स 12,000, सो इधर लिखेंगे ड्रॉइंग्स 12,000। ड्रॉइंग का दूसरा इफेक्ट किधर आएगा, ड्रॉइंग दूसरा किधर आता है, कैश गया, ड्रॉइंग दिया, व्हेन द ओनर टुक the money of the business for his personal use, it is drawings, where else will drawing come, ड्रॉइंग और किधर आएगा, ड्रॉइंग इधर आएगा, लेस ड्रॉइंग, कैपिटल में से ड्रॉइंग्स लेस करना है, सो यहाँ पे ब्रैकेट में आई विल शो 12,000। उसके बाद व्हाट इज देयर, सन्ड्री एक्सपेंस पेड 14,000, सन्ड्री एक्सपेंस पेड, दिस इज पेमेंट, तो कैश बुक में लिखेंगे बाय सन्ड्री एक्सपेंस 14,000, तो इधर लिखेंगे 14,000। फिर सन्ड्री एक्सपेंस किधर आता है, दूसरा इफेक्ट, सन्ड्री एक्सपेंस P&L अकाउंट में आता है, तो टू सन्ड्री एक्सपेंस 14,000, सन्ड्री एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। नेक्स्ट वन, फर्नीचर परचेज किया तो कैश गया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बाय फर्नीचर
फर्नीचर 2000, फर्नीचर कितना परचेज किया 2000, तो फर्नीचर परचेज करते हैं तो और किधर लिखते हैं, फर्नीचर परचेज करते हैं तो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, करंट ईयर बैलेंस शीट जो हम बना रहे क्लोजिंग बैलेंस शीट, सो उसमें एड परचेज 2000, कुछ डिप्रिसिएशन कुछ दिया नहीं है, सो डायरेक्टली आउटर कॉलम, अगर डिप्रिसिएशन होता तो हम इसमें से डिप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करते। नेक्स्ट वन, देर वॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स, मतलब नाउ हमें कैश बुक को बंद करना है एंड दे से दैट कैश में भी सेल किया है, तो हम जब कैश बुक को बंद करेंगे वी विल कम टू नो दैट वो हाउ मच इज द कैश सेल्स, कैश सेल्स मीन्स हमने सेल किया कस्टमर को एंड ऑन द स्पॉट कैश ले लिया, और एक होता है सेल किया कस्टमर को और उनको उधार दे दिया, क्रेडिट दे दिया, तो हमें पैसा फ्यूचर में मिलेगा, बट कैश में सेल करेंगे तो कैश बुक में आता है, तो कैश बुक को बंद करो, यू विल गेट, वी कैन सी दैट द क्रेडिट इज मोर, कैश बुक में क्रेडिट इज मोर, so how much is it, 20 plus 4 plus 12 plus 14 plus 2 plus 600 is 52,600, ये सबको ऐड किया तो 52,600 माइनस करो कितना मिल रहा है 8,400, इसको बोलेंगे टू, बैलेंसिंग फिगर है कैश सेल्स, ये क्या है हमारा बैलेंसिंग फिगर, तो कैश सेल्स मिल गया, तो क्या सेल किधर आता है, इधर आता है बाय सेल्स, दो टाइप का सेल है कैश और क्रेडिट, तो दोनों है ये क्वेश्चन में, तो कैश अभी मिला 8,400, कैश अभी मिला 8,400, क्रेडिट डेटर अकाउंट में से मिलेगा, तो हमारा उसके बाद क्या दिया है क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹23,000, तो क्रेडिट में परचेज किया, कैश परचेज के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जितना परचेज है पूरा का पूरा क्रेडिट है, ब्रैकेट में आई विल राइट क्रेडिट बिकॉज नथिंग गिवन इन द कैश बुक रिगार्डिंग कैश परचेज, तो पूरा परचेस हमने क्रेडिट में किया, हमने कैश में कुछ भी नहीं खरीदा, अगर खरीदा होता तो रिसीट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर में होता कैश परचेस करके, मीन्स वी हैव नॉट परचेस एनीथिंग ऑन कैश, all was purchase, all the goods were purchased for credit, तो क्रेडिट परचेस मतलब हमारा क्रेडिटर उसी से इंक्रीज होता है, हम क्रेडिट परचेस मतलब क्या, जिनसे हम क्रेडिट में परचेस करते हैं वो हमारे क्रेडिटर है, और जितना क्रेडिट परचेस करेंगे उतना हमारा क्रेडिटर इंक्रीज होगा, बराबर, क्रेडिट परचेस का दोनों इफेक्ट दिया। अब जरा एक काम करो, डेटर क्रेडिटर अकाउंट दोनों बंद करो, कितना आ रहा है, क्रेडिटर अकाउंट बंद करोगे तो क्रेडिट सेल्स मिलेगा, तो दिस इज हाउ मच 56,000, 56,000, इसको भी बंद करो 56,000, हाउ मच यू आर गेटिंग बैलेंस 44,000, इसको बोलेंगे डेटर कब इंक्रीज होता है, क्यों डेटर अकाउंट बनाया हमने, बिकॉज क्रेडिट सेल्स मिसिंग था, क्रेडिट सेल्स मिसिंग था इसलिए हमने बनाया ये डेटर अकाउंट, तो डेटर अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर मिला वो हमारा क्रेडिट सेल है, सेम वे डेटर अकाउंट, सॉरी क्रेडिटर अकाउंट भी बंद करो डेटर के बाद, तो डेटर अकाउंट बंद किया, अभी क्रेडिटर अकाउंट बंद करो, आई कैन सी दैट द क्रेडिट इज हैवी 27,000,
27,000। अब जो बैलेंसिंग है, देखो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दिया है, पर क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस जो हमें बैलेंस शीट में लिखना है वो नहीं दिया था। तो ये जो बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर का, इट विल कम इन द बैलेंस शीट। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। हमें क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस नहीं दिया था क्वेश्चन में, इसलिए हमने क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया। देखो क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया था, तभी हमने क्रेडिटर अकाउंट बनाया। सो हम क्रेडिटर किधर लिखेंगे, जाओ बैलेंस शीट में जाओ, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और क्रेडिटर्स 7,000 इन द आउटर कॉलम। और क्रेडिट सेल्स कितना मिला, 44,000। दोनों को टोटल करो, हाउ मच यू आर गेटिंग, 88,400 एंड 44,000। टोटल सेल्स हो जाएगा 52,400। कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स दोनों ऐड करेंगे तो टोटल सेल्स मिलेगा, बट सेल्स रिटर्न कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। अभी क्वेश्चन में देखो एक और जगह हमने डेटा लिखा है ना, ना एक और चीज बचा है, देयर इज व्हाट, provide a provision for doubtful debts to the extent of 10% on debtors। तो debtors तो हमें पता है, उसमें RDD निकालो, प्रोविजन निकालो, 10% गिवन इन द क्वेश्चन, 10% प्रोविजन निकालो, कितना होता है क्वेश्चन में दिया है। डेटर्स हमें पता है, उसमें एडजस्टमेंट है 10% RDD, माइनस करके कितना आएगा जरा देखो, 12,600। एंड RDD एक और जगह आएगा, तो वी विल राइट इन द P&L अकाउंट टू RDD, या बैड डेट्स प्रोविजन लिखोगे तो भी चलेगा, 1400। सो ऑल द एडजस्टमेंट्स डन। लास्ट एडजस्टमेंट था ये, सब एडजस्टमेंट कर लिया। अब ये काम करो, ट्रेडिंग अकाउंट बंद करो, कितना हो जाएगा, 54,400। क्रेडिट साइड 54,400। नाउ फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, टू, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बताओ, टू ग्रॉस प्रॉफिट carried down. How much gross profit you are getting? How much gross profit you are getting? 25,400. Is it correct? 2 gross profit हो जाएगा by gross profit bought down, 25,400। तो इसके बाद नेट प्रॉफिट बताओ कितना है, सबको प्रॉफिट्स निकालना आता है, एवरीवन नोस हाउ टू टेक द, कौन सा साइड हैवी है उसका टोटल दोनों जगह लिखते हैं, और कम वाले साइड से माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है क्रेडिट ज़्यादा है, तो मैंने टोटल दोनों जगह लिखा। अब नेट प्रॉफिट के लिए क्या करो, माइनस करो 25,400 से 4,000, 14,000 एंड 1,400 माइनस करो, और देखो हाउ मच यू आर गेटिंग एज अ नेट प्रॉफिट, हाउ मच नेट प्रॉफिट यू आर गेटिंग, 6,000। इज इट करेक्ट, 6,000 का नेट प्रॉफिट मिला, ग्रॉस प्रॉफिट मिला था 25,400। सो अभी ये नेट प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा, ऐड, नेट बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट। सो यहाँ पे ऐड करेंगे 6,000 और 12,000 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2,200। नाउ सी वेदर अवर बैलेंस शीट इज टैली, इधर दिख रहा है 27,200, 2,200 plus 7,000 is 27,200. See in the asset side also whether you are getting the same amount, 12,000 plus 2,000 plus 12,600
plus 600, which will be equal to 27,200. With this, our sum is done. Our balance sheet as tallied, and the question, in the question they had asked trading account, P&L account prepare karo or balance sheet prepare karo. With the balance sheet tally, our sum is done. Thank you everyone.